I could not even dare to dream to be a dancer. I never thought I would enter a reality show. I would never thought I would win the show. Never thought I would judge a show. Nothing of this ever came to my mind even in the strangest dream. मैंने अपने आप को mentally prepare कर लिया था कि अगर मैं महीने में 5-6 हज़ार रुपए भी घर जा के सिखा के पैसे कमा लूँगी, I rather do this than anything else in the world. मैंने किसी इंटरव्यू में, रैंडम इंटरव्यू में बोला था कि my dream is to work with बंसाली सर. अरे बाप. And then when I got a call ना, मैं घर में भागने दौड़ने लग गई. Like. वेलकम बैक टू ठीक टॉक विद ठाकुर. आज जो हमारे साथ हस्ती है वो करोड़ों दिलों में बसती है. वो नृत्य की दुनिया उनकी भक्ति है और वो नृत्य की शक्ति है. वेलकम शक्ति मोहन. Oh my God. देखा वो नृत्य शक्ति कैसे मैंने लाया. ये जो पोएट्री करी है ना, ओनली यश ठाकुर कैन डू दिस. थैंक यू शक्ति. तू बोल, मतलब जितना भी बोल के तू खुश है, ये तू इमेजिन नहीं कर सकती मैं कितना खुश हूँ. बिकॉज आई हैव बीन वांटिंग यू ऑन द एपिसोड फॉर अ लॉन्ग टाइम. एंड आपके बिजी शेड्यूल को ऊपर नीचे करते हुए मैं इतना मानूंगा कि जैसे ही मैंने तेरे को बोला यू वर स्वीट इनफ एंड यू साइड के करते हैं एंड यू आर हियर and we are doing this. But before you say that you are happy that I'm here, I am so happy that you are pursuing your dream, because I know you had left, I mean not left, you had to choose an industry which was not exciting for you, and to now see you doing this every day and see that this happiness is so pure and amazing. Every time I see your stories and you're on Instagram, makes me really happy. I'm really proud of you. Thank you so much यार शक्ति. And ये जो प्राउड वाली फीलिंग है हमारी बहुत म्यूचुअल है, बिकॉज हम दोनों ने एक दूसरे की जर्नी वहां से देखी है. व्हेन मतलब आई हैव सीन यू इवन बिफोर डांस इंडिया डांस, एंड बहुत कम लोग ऐसा बोल सकते हैं. एंड यू हैव सीन मी व्हेन आई वाज लाइक व्हाट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग, सो तब तक पढ़ाई कर रहा था. बट इस जर्नी का आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इज डांस. मतलब ये जर्नी के साथ तेरे लाइफ में डांस क्या मायने रखता है. एंड वी ऑल नो व्हाट यू अचीव्ड इन दैट फील्ड. मतलब तुझे कम ही लोग हाथ लगा सकते हैं उस फील्ड के अंदर. लेकिन मेरे को देखो पूछना था कि कभी ऐसा हुआ दैट यू नो इन अ बैड फेज और इन डार्क टाइम्स वेयर यू सेड लाइक क्या कितना डांस, लाइक आई वांट टू स्टॉप. Never. Never? Never, ever, 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 ever. Like I have never gone this close to ever feeling like this. Even today, as I'm sitting here or I go to the studio and have to manage things, I'll be looking inside the class, ki, oh my God, why am I not doing this class? I'm so hungry to learn, and it's a huge blessing to be able to dance. Every day I'm so grateful that I have my legs, my arms, and I can dance and I can, you know, it's like playing a game. जैसे you feel so passionate about cricket. वैसा मुझे लगता है कि if I could, this is my thought back in the days कि if I could dance, it would be the biggest luxury of my life. And I get to live this every day, so. That is fantastic. And I think जिस तरीके से तू डांस के बारे में बात करती है और उसको कितना वैल्यू करती है, it also comes from that point that मतलब you had a injury scare which was so dangerous that मतलब डांस करना तो बहुत दूर की बात है, तू भाग भी नहीं पाती for life. So maybe you value it even more than others because तुझे पता है कि सबको नहीं मिल सकता है, कुछ हो भी सकता था ऐसा. Actually, I was very little when my injury happened, 4 years old. You have seen the marks Correct, that I have. correct. So my leg, my back was broken to that extent where doctors told my parents that she'll never be able to walk again. So that I was too little to even realize what has happened. I was just in the hospital, and for 7-8 months I was just flat on the bed, could not even sit up. Wow. So I think moms होती है ना, who never give up. And I think it was her determination, like कुछ ना कुछ करके she, you know, made me, I started walking very slowly, and वहाँ से लेके पापा जैसे मेरे पोएट है, मेरी बेटी चलेगी नहीं उड़ेगी. क्या बात, क्या बात. तेरे पेरेंट्स के बारे में बात करें तो आई थिंक आई लव द फैक्ट दैट दे पुट देयर फुट डाउन एंड ऐसा बोला कि तीनों चारों बहनें झगड़ा नहीं करना, एक एक फील्ड डोमिनेट करो. ऐसे नीति गाना गा, उधर कोई नहीं आएगा, झगड़ा नहीं, तू गाना गा. फिर कृति तू सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन कर, सब संभाल, ओके, वहां कोई नहीं आएगा. शक्ति डांस कर. एंड इनफैक्ट all of you all even overlap. Like I know that Neeti and Mukti are fantastic dancers, and I know you can also sing to, like, you know, at least ऐसा stage वाला नहीं, but हाँ, मतलब पुनीत जितना गंदा नहीं.
कान में से खून आने लग जाए. नहीं, पर it sounds very मतलब कैसे बोलूँ, we never thought that we'll be choosing these professions ever. Like till I was in college, I never thought I would be picking up dance. I was so scared to even say I want to dance. क्या बात कर रही मेरे है? को बहुत डर लगता था, especially when we were in Delhi and we were financially just broke to another level. And at that time, to even go for classes, you can't even think of it. हाँ, क्योंकि वो एक एडिशनल फीस हो जाएगी ना. एडिशनल फीस है, हम तो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, हम क्लास में कैसे जाएंगे. सो एट दैट टाइम टू हैव दीदी सपोर्ट अस, शी यूज्ड टू डांस. शी वाज इन एश्ले लोबोज कंपनी इन दिल्ली, शी वाज अ बैक डांसर पहले, एंड देन शी लव टू सिंग, तो वो सिंगिंग क्लासेस भी करती रही. वो तो इट वाज अ कोइंसिडेंस कि उस टाइम पे वो बैंड आया था ना, वो कौन सा, वीवा केम एंड देन शी वेंट एन ऑडिशन फॉर द नेक्स्ट. तो ऐसे करके वो सिंगर बनी. सो इट वाज नेवर कि पापा ने डिसाइड किया है तुम ये बनोगे, ऐसा नहीं. Damn, this is a crazy story. I didn't know this. या सो दीदी जस्ट हम इतनी लंबी, दिल्ली में स्पेशली हज़ारों की लाइन लगती है ऑडिशंस में. तो टीनू दीदी, कृति दी, शी वेंट एंड स्टूड इन द लाइन प्रीवियस नाइट, रात भर वो लाइन में लगी रही. और जब उनका नंबर आने वाला था तो दीदी को फ़ोन किया, दीदी आओ. दीदी इज़ लाइक अरे आई एम नॉट गोइंग. नहीं जाओ. तो पापा उनको लेकर गए वहाँ, उन्होंने ऑडिशन दिया, शी गॉट सेलेक्टेड. फिर उसके बाद जब पूरा वो शी वन द कॉम्पिटिशन, बॉम्बे शिफ्ट हो Then गए. आसमान आप. तो धीरे धीरे करके फिर हमें भी शिफ्ट होना पड़ा उनके कारण. दैट्स हाउ द होल स्टोरी अनफोल्डेड, बिकॉज नन ऑफ अस वर प्लानिंग कि ओह मुझे डांसर बनना है. आई हैड नो क्लू. एवरी स्टेप वाज लाइक अभी क्या करना है. आई हैव नो आइडिया. Just survive. I think one message that everybody who's listening to this should take, that right now it is safe to say that Shakti is a successful achiever and she'll do more in her life. But she also at one point of time didn't know what she wanted to do. Yeah. It's okay to not know. Yes. Stop like crumbling under that pressure. मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं पता है. Yeah. No, I mean ये आजकल की जनरेशन ना थिंक्स टू मच, दिस एंड दैट, एंड इतनी कैलकुलेशन मत करो. Sometimes you just keep walking, keep going with what's happening in your life and things will fall in place. Like for me in Nritya Shakti also, people are like, why was it your dream to open an academy? I'm like, I could not even dare to dream to be a dancer. I never thought I would enter a reality show. I would never thought I would win the show. Never thought I would judge a show. Nothing of this ever came to my mind, even in the strangest dream. And even the studio just fell into place. I'm like, I have no business acumen. There's nobody in the family who's ever done business before. So I'm like, what am I going to do? I have no management skills. So everything just happened. You know, when you know that something's just supporting you because you love it so much, like for you also, I feel that that's happening. I think that's what happened. The next question that I was going to ask, I was going to become a part of that, the people who say ये क्या आपका सपना था नृत्य शक्ति खोलना, but I was not going to ask you like that. मैं तेरे को ये पूछने वाला था, does it stem from that feeling that मुझे डांस कम्युनिटी को वापस देना है? Yes. So once I opened the studio, I didn't know what to do. I have no clue how to run a studio. But since I was a part of Terence House Academy, I know fairly, but I have no idea how to run it, how to be a boss suddenly. So, but I knew that I wanted to give back. I didn't want to do any business or make money. There is just no idea of, making money from Nritya Shakti. It was always that if I can share what I learned over the years and create a very happy environment for dancers to grow, because it's very harsh, it's very competitive. And जिस तरह के studios like 10 years back, what I have seen, आजकल तो बहुत अच्छा हो गया कि washrooms में flies and dirt, and dancers deserve better. We are creating something so beautiful, but we don't have the environment, nobody's supporting it. I went all for it. I put all my money I earned into making the studio the way it is today. Superb. Yeah. I've been to the studio, so I can shake your hands and say that it is a very well made, well thought property. नहीं बोलूँगा, अब तो स्टूडियो हो गया है, बट उसमें वो छोटी छोटी बातें दिखती है जो तू बोल रही है, क्योंकि पहले कैसा था ना, डांस सबको देखना है, बट डांसर्स की हालत किसी को नहीं देखनी. Exactly. पीछे क्या हो रहा है, एंड you've looked after that and that is really commendable. ये वैसी वाली बात है ना, जिसको फर्स्ट ईयर में रैगिंग होने पे नहीं मजा आता है, तो तुम सेकंड ईयर में जाके खुद क्यों करते हो? Wow. तुम वो व्हील ब्रेक करो ना. नो, आई डिड इट इन माय इंजीनियरिंग कॉलेज व्हेन वी बिकेम सीनियर्स. आई टोल्ड माय फ्रेंड्स दैट आई हैव सीन यू कम टू माय रूम एंड क्राई व्हेन इट हैपेंड टू यू. हमारा खून गर्म क्यों हो रहा है अभी, हम लोग क्यों कर रहे हैं? व्हाई कांट वी बी दैट बैच हु स्टॉप्स इट?
and we did. And I'm so glad that you did this because कुछ तो तू अलग कर रही होगी, because I always call you and तुम्हारे पहले वाला DID batch 1 and DID batch 2 like the OGs of dance reality show. पहले कुछ नहीं था, तुम लोग जब आए, बट उनमें से अगर मैं सबको देखूं, there are so many of them who became so famous so fast and they got traction, they got brands, they got name, but none of them became such a big brand as Shakti Mohan has become now. Really? You're not a name, you're a brand. I always say that to my friends also, to have your own training program for dancers. Yes. That I think in my head, when I saw that story, I said Shakti's arrived as a mentor, because that was your dream throughout कि एक curriculum बना पाए जहां पे डांस वाले लोग आके डांस सीख सकते हैं. For students now at Nritya Shakti, we make sure that they are prepared to face the world. It's not about, you go and become successful. What for me is very important is that you should have fun when you're learning. मतलब everything is ना goal oriented, कुछ बन जाओ. मतलब you can, if you are enjoying something in the process, your destination will anyways be beautiful, right? 100%. अगर आप ऐसे सीख रहे हो कि नहीं कुछ बनना है, रियलिटी शो स्टार बनना है, कोरियोग्राफर बनना है, ऐसे करके क्यों सीखना है? ऑल्सो जो फन करता है ना, टेल मी इफ यू अग्री विद मी, जो फन करते करते जाता है ना, वो आउटलास्ट करता है दूसरों को, क्योंकि जो फन नहीं कर रहे वो बहुत जल्दी ना दे बर्न आउट, एग्जैक्टली, मेंटली टायर्ड हो जाते हैं, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग लाइक अगेन. बट जो एंजॉय करने जा रहे हो तो बोले चलो भैया और एंजॉय करने जाता है. एंड इतना, बिकॉज इट्स एन आर्ट फॉर्म, you have to have fun. You cannot do this like, मतलब, I used to work like this कि बहुत seriously. I began to learn as I entered DID that it is a form of entertainment. It is not gymnastics. मतलब ये एक अंदर की मेरी journey थी where I would not express. I would not show my expressions. And धीरे धीरे करके मुझे टेरेंस सर ने इतना डांट के ना खुदा जाने में, शक्ति, you are in love, show that love, how you're like this, एकदम like kicking here and there but no expressions. तो धीरे धीरे करके you have a journey of becoming a dancer to a performer. So I think I started loosening up as like I have to enjoy and be a performer and not take my life so seriously. I think when you come from a broke family, you just become very hard and tough on yourself and result oriented. Yeah, just you have to win, you have to come first every time. So every class I had to just work. I don't remember going to coffee shops because I couldn't even afford it. I could not afford bus की ticket. Like अगर 7 रुपए की ticket होती थी दिल्ली में, from my college campus to my house, I would buy 5 rupees ticket because I would genuinely not have 7 rupees. And बाकी का चल के? नहीं, वहाँ पहुँच के just dodge from the conductor here and there, hide. And if he catches you, then you get down and walk. Correct. So this was my everyday story. So from there, when you're like, now I have to win, I have to fight, I have to provide for my family, because they allowed me to do whatever it is. In this situation also, my father never said, you cannot dance. It's like, do whatever it is that makes you happy. And that made me feel, I have to win. I cannot take my life like, oh, have fun. So but that is the kind of attitude that you should have. And तूने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि enjoy करने के लिए you need to learn how to be in the moment. वो जो टेरेंस सर तुझे बोल रहे थे कि तेरा एक्सप्रेशन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि तू डांस वहां कर रही है, तेरा दिमाग कहीं और ही है. बट वो तो बड़े बड़े स्पिरिचुअल लोग भी बोल रहे हैं दैट लर्न टू लिव इन द मोमेंट नहीं हो पा रहा है लोगों से. सो इट्स अ बिग टास्क. डू यू थिंक टुडे शक्ति इज बेटर इक्विप्ड टू बी इन द मोमेंट compared to? Yes, any day. I think about 10 years back, I started to take my life little easy. पहले बहुत ऐसे करके fight करके, and actually growing up with Mukti, when you have a younger sibling who's always very choppy, happy and energetic, you become a little straight face. So मुक्ति ऐसा लगता है, मुक्ति के बारे में वो बोला जा सकता है जो मेरे बारे में बोलते हैं कि वो हाथ से गिर गई थी और डायरेक्ट कोकेन के बोरी में गिरी थी. उसका एनर्जी कभी खत्म नहीं होता है. मतलब so when you're growing up with that energy always around you and copying everything that you're doing, so you tend to become like, I'm sure you get this. No, I understand it. But हाँ, इसी के लिए मेरा ना बहुत ऐसा हो गया. तुझे गाड़ी 60 पे चलानी है और एंजॉय करना है म्यूजिक, पर तेरे मिरर में देखती है तो पुछड़ी पे वो कोई है जो चला रहा है 80 पे, जो पूरा कान में चला रहा है. तो then you're like, oh. No, I agree. But ये सब के साथ साथ
I know that as soon as the reality show happened, the life changed. Yeah. But before the reality show happened, एक बहुत इंपॉर्टेंट एरा का डिफरेंस है जो शायद अभी वाले नहीं समझ पा रहे. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डांस हैड स्टिल नॉट बिकम अ सक्सेसफुल प्रोफेशन. Correct. ठीक है, वो रियलिटी शो तभी आ रहा था, सोशल मीडिया नहीं था, ये इन्फ्लुएंसर और ब्रांड ये कुछ नहीं था. ठीक है, एंड इवन इफ यू वर इन द शो, उसके बाद भी तुम एक कॉन्ट्रैक्ट में थे, तुम सिर्फ उनके साथ ही परफॉर्म कर सकते थे. सो उस टाइम पे कभी कभी ऐसा डर लगा दैट आई वांट टू मेक डांस माय करियर, बट इज इट अ प्रोफेशन विच विल हेल्प मी सस्टेन फाइनेंशियली? डर लगता था. Yash, even before the reality show, I knew that there was no scope. I entered dancing knowing that मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था कि अगर मैं महीने में 5-6 हज़ार रुपये भी घर जा के सिखा के पैसे कमा लूँगी, आई रादर डू दिस देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड. आई न्यू इट. So everything was a bonus. Wow. It's like reality show, what? There's a reality show, I get to learn here. I joined just to learn new dance forms. Wow. I did not enter ki, oh, I will prove myself. That was not the point. I was like, I will get to learn from so many new people. My idea was never to become famous and have more money. So every day was like challenge myself. I'm going to do it, I'm going to do it. Oh, you want to hang me upside down? I will hang. And I have bruises from that time even now on my body all over. But it is all, what do you say, victory marks all over. When you're talking Battle about scars. Battle scars, see, all this from aerial straps and everything. पर ये कभी भी नहीं सोचा कि oh this much income I'll have, I will have security, nothing. I was like that is fantastic. And Mukti and I, when we were broke, हम लोग स्कूल से समर वेकेशन में घर आते थे and we used to see our condition. हम लोग घर जा के सबको डांस सिखाते थे. Oh, school time से you were teaching टाइम people? से, yes. हम लोग कुछ भी होता था, हम लोग जाके जितना भी 500-600 रुपये कमाए मम्मी को जाके देते थे कि मम्मी लो. तो हमारा आइडिया ये था कि बस किसी भी तरह करके बस सर्वाइव करना. वो फिर तुम रख भी सकते थे, भी सकते थे, हाँ बाहर चॉकलेट खा लेंगे, आइसक्रीम खा लेंगे या जो भी, बट जाके मम्मी को ही दिया. कभी ऐसा सोचा ही नहीं. वी वांटेड टू गिव ऑल द कंफर्ट टू आवर पेरेंट्स कि वी वांट टू ट्रीट देम लाइक दिस. दीदी ऐसा बोलती थी व्हेन वी हैड टफेस्ट ऑफ टाइम्स कि मम्मी आई एम गोना ट्रीट यू लाइक अ क्वीन एंड आई वांट टू ट्रीट यू. एंड दैट टाइम इट वाज जस्ट नॉट देयर. इस हवा में जैसे बातें हैं ना, आई एम गोना मेक यू दिस एंड दैट, एंड देन शी रियली ट्रीट्स हर. एंड किसी की भी, तुम में से किसी की भी बात हवा में नहीं है ना अभी. आई हैव सीन योर हाउस, इट इज फैंटास्टिक. एंड वो भी जिस तरीके से तुम लोग अपने पेरेंट्स को रखते हो. इनफैक्ट रिसेंटली यू वेंट ऑन अ वेकेशन विद बोथ ऑफ देम, आई थिंक अ फ्यू मंथ्स बैक ओनली, राइट? बाली, हाँ. बाली. एंड वो वेकेशन में मैं देख रहा हूँ तू उनसे रील्स करवा रही है, उनको टोपी पहना के, वो एकदम वो बाली वाला शर्ट पहना रही है. They were like kids on the trip. So sweet. कितने खुश थे. No, so I like how तुम लोग ना, I know the saying is like man of his word, but I think it should be person of his word, or their words, because तुम लोग सब लोगों ने अपने जुबान रखी है. डांस इंडिया डांस के टाइम पे it was the first batch of people, or second batch we can say अगर first season गिने तो, who was understanding the pressure of delivering an episode. वो pressure में कभी तेरे को ऐसा लगा कि this show is getting too much? Did it affect you mentally and emotionally? You're talking about DID, right? DID. First time हो रहा था तुम लोग के साथ. ये सब तो बोला है, ये नहीं बताया कि that show was about doing different styles. हाँ, हर बार आप नई शैली लाए, वो वर्ड ही मैंने वहां से सीखा है. आपने जो शैली, आपने क्या अटेम्प्ट का एक क्या बोला? हाँ, आपके अटेम्प्ट, आपका अटेम्प्ट बहुत अच्छा था. आपका अटेम्प्ट के लिए मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा, काबिले तारीफ है, लेकिन ये थोड़ा टेक्निकली अच्छा नहीं था. एंड एवरी वीक यू हैव टू डू अ न्यू फॉर्म. मतलब बीइंग अ कंटेम्प्रेरी ट्रेन डांसर, भरतनाट्यम ट्रेन डांसर, सडनली नेक्स्ट वीक आपको हिप हॉप करना है. चलो ठीक है, आपको पॉपिंग करना है. मतलब मैंने पॉपिंग लाइफ में कुछ नहीं किया. एंड नेशनल टेलीविजन, दैट टाइम आई क्राइड. मतलब उस टाइम मुझे ऐसे हो गया था कि स्टॉप टेस्टिंग मी, बट आई किल्ड इट. मतलब आई वेंट विद इट कि जितना मुझसे होगा, आई विल नॉट डाउट माई सेल्फ, आई विल गो एंड डू इट. वो गेंदा फूल चॉइस ही नहीं है ना वहाँ. चॉइस ही नहीं था. मैंने कहा इंजॉय करके ऐसा दिखाना है कि बस मुझे ही आता है ये डांस स्टाइल. देन सडनली उसी वीक आप एक परफॉर्मेंस कलर ही कर रहे हो जो कि पूरा सो फिजिकल कि आपका मतलब 1 घंटे का वर्कआउट इज इनटू 2-3 मिनट्स. और कितना स्ट्रॉन्ग चाहिए पूरा वो ब्लू अवतार वाला बन के. फिर चेंज क्विकली, वॉश वॉश वॉश. सेम डे में शूट हो रहा है, सुबह 5 बजे से आपका कॉल टाइम है. एक परफॉर्मेंस हो गया, नेक्स्ट परफॉर्मेंस भंगड़ा. वाह. भंगड़ा का कॉस्ट्यूम, उसमें पूरा कार्डियो. देन यू हैव अ सोलो.
and then shoot over, next day new acts. So I think what I realized after that show, if you can do this any reality show joyfully, you can survive anywhere in life. And that means you really love dance. Otherwise, you would have left. Yeah. I remember this moment, फिनाले चल रहा था, वो इतनी बड़ी टोपी नहीं बनाई थी, हाँ, तकदीर की टोपी, ग्रैंड फिनाले पे. गोल्डन वाली. तो हम सबको हार्नेस पे, मैं, धर्मेश, पुनीत और बिनी, हमें हार्नेस पहना के याद है, you have to catch. उसमें हम लोगों को, हाँ, उसमें पुनीत का पहुंच नहीं रहा था, तो हम लोगों को लटका दिया उसमें, और वो एरियल वाले ना खाना खाने चले गए. और हम लोग इतने थके हुए हैं कि हम लोग उसी में लटके लटके सो गए हैं जमीन पे. क्या बात कर और कैसे रात को स्टेज कैसा गीला गीला नहीं हो जाता है, सब गीले, पता पूरा फ्लोर गीला है, एंड एवरीवन्स पास्ड आउट, स्लेप्ट, और जब तक उन्होंने हमें खींचा नहीं हम लोग उठे नहीं. मतलब दिस वाज द स्टेट. आई हैव सीन पीपल पासिंग आउट एनीवेयर, जैसे गंदा कारपेट, कचरा, और सो रहे हैं. इतने थके होते थे हम लोग. इंटेंस. वेरी थ्रिल्ड. जो पहले देख के होता था, ओ माय गॉड ये कंटेम्प्रेरी है, ये पॉपिंग, अभी ऑडियंस को सब समझ में आ पर चुका अभी है. शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट भी आ गया ना, जो अभी अगर वही डांसर्स अपने इंस्टाग्राम पे हर 2 दिन में परफॉर्मेंस डाल रहे हैं, तो मैं टीवी पे जाके क्यों देखूंगा उनको? अपने टाइम से देखूंगा ना. करेक्ट. वो प्लेटफॉर्म का वो जो थ्रिल, एक्साइटमेंट कि टीवी पे आएगा 9 बजे, वो तो पूरा जा ही चुका है हर तरीके से. पर सी, टैलेंट, डांस विल नेवर डाई. करेक्ट. इट विल जस्ट गो टू वन फॉर्म और द अदर. कुछ और बन जाएगा, रील्स बन जाएगा या कुछ और. आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू इज गो पास्ट रियलिटी शोज. कुछ अलग करना पड़ेगा. गो बियॉन्ड इट, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. मैं अभी वही बोलने वाला था जो तू ऑलरेडी ट्राई कर रही है. So Shakti has just come up with a fantastic concept. It says dance across the world, and with Shakti Mohan obviously, where she will go to a certain country, learn their local dance forms, break them down, how it's done, and obviously when she's traveling, she'll be talking about the dance form and how it. तू ही बता और क्या ये शो के बारे में. और So I'll tell you something that people don't know about me is that I have done 8 years of classical training in Bharatnatyam, and I have done folk dancing for 10 years, nice. Rajasthani. तो ये सब चीज़ें ना, when I moved to the cities, I realized कि इसका कुछ वही, because I was in a boarding school, हम बहुत ये करते थे. जैसे ही सिटी में आया ना, वो उसका कहीं ना कहीं क्रेज़ और वो नहीं था. करेक्ट. तो मुझे लगा क्यों नहीं है. DID में मैंने बहुत ट्राई किया कि अरे सर ऐसा राजस्थानी करते हैं, बट देन मे बी व्यूअर्स नहीं है या कुछ चैनल को एक्साइटमेंट नहीं है इस चीज़ की. सो समवेयर जस्ट स्टेड विद मी कि समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट फोक एंड क्लासिकल. इट कैन नॉट बी कि हमारे 2,200 साल पुराने जो डांस फॉर्म्स हैं वो अभी बस डाई हो रहे हैं एवरी डे. आई रियली वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट, एंड लाइक आई मैंशन टू यू अर्लियर कि 13 साल पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया, पूरा लोगों को पिच किया, एंड देन यू नो विद लाइफ, विद थिंग्स हैपनिंग, वो डिले होता रहता है आपका ड्रीम प्रोजेक्ट. नाउ इट फाइनली हैज़ टेकन ऑफ, एंड आई वॉन्ट टू रिवाइव एंड ग्लोरीफाई दीज फोक डांसेस बिकॉज दे आर सो प्योर एंड ब्यूटिफुल. उनका इंटेंशन ही है टू सेलिब्रेट. उसमें कोई इंटेंशन नहीं है कि शो ऑफ, फ्लिप, एक्रोबैटिक्स, नहीं. वो म्यूज़िक बजेगा, एंड आई कैन अश्योर यू, जब मेरा फर्स्ट एपिसोड हमने श्रीलंका में 1 hour का मैंने परफॉर्मेंस देखा है, नॉट फॉर 1 second आई वॉन्टेड टू सिट एंड वॉच इट. आई ड्रेस्ड अप इन देयर ट्रेडिशनल अटायर एंड आई एम वॉचिंग इट. देयर म्यूजिक, देयर कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुल. आई एम लाइक ये देखना चाहिए लोगों को. बट समहाउ टुडेज यूथ डजंट नो अबाउट इट, एंड सोशल मीडिया पे इन आवर लाइव्स ओनली देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस. वट एवर वी आर सीइंग इन बॉलीवुड, हॉलीवुड, हम लोग वही करते जा रहे हैं. And I think it will take me a couple of seasons for people to actually understand कि folk की value क्या है. तो it's just my initiative right now, starting off with first season, going to several countries, and I want to come back to India and do it because India में तो next level folk dances हैं. But yeah, मेरे को मतलब आश्चर्य तो बिल्कुल नहीं होता है, खुशी होती है जब भी तू कोई भी डांस की बात करती है. तेरा चेहरा ऐसा लाइट अप हो जाता है ना, तेरा वो चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म अभी भी है, वो पैशन अभी भी है. एंड टच वुड, आई वांटेड टू लास्ट फॉर एवर बिकॉज दिस इज हाउ पीपल टॉक व्हेन दे आर इन लव. यू आर इन लव विद डांस टू मच. मतलब तेरा आंखें ऐसे हो जाती है, यू आर स्टिल दैट गर्ल हु इज क्रशिंग ऑन डांस. एंड पीपल हु ऑलवेज थिंक दैट दे हैव अ ड्रीम,
दिस अ वेरी गुड लेसन फॉर देम ऑल्सो कि ड्रीम का कोई एक्सपायरी डेट नहीं है. 13 साल पहले तूने बोला ना. सो तूने एक कॉन्सेप्ट बनाया, वो कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं बनाया, तो तूने 13 साल में खुद को बनाया और तूने अब वो कॉन्सेप्ट बनाया. ये है तू. वाह ये है शक्ति मोहन. वाह क्या बात है. I'm super impressed and super proud, and I love the concept, because what it is going to do is that now when suddenly you're showing other countries ka folk dance form, then our folk dance form will suddenly start getting limelight again. Yes, I have seen that with Nitya Shakti also. A lot of people take my teachers and they want to start. Acha. I can assure you one thing, that what I have, other people cannot have. Like what you have also, nobody. My intention and purity for dance, I don't think other people will have. True. I'm willing to give my life to dance. I'm willing to do anything for dance. I'm also thinking what to create for dancers when they are 50 and 60. You know, when they don't have anything, they don't want to run around and teach. So I'm also working on that plan, how to create a space for them where they don't feel like they have to struggle and they can't sustain themselves in the Kya city. baat hai. So I know I that. think I'm going to applaud that. No, but because that's a very good thought, because dancing is such a physical activity. What do you do when you're not moving it at your best? Exactly. Very nice. And इसके अलावा शक्ति, you have set up a whole institute. We can call it an institute now. Dancing studio ही नहीं, वो institute हो गया. But your journey as a choreographer has also been phenomenal, and I think fair to say that the feather on the cap was Nano wale ne for Mr. Sanjay Leela Bhansali, and icing on the cake was that it was sung by your older sister, that was Neeti Mohan. So tell us about that. How did it feel like choreograph a full song for a Sanjay Leela Bhansali film? यश पता है कुछ महीने पहले ही ना मैंने किसी इंटरव्यू में, रैंडम इंटरव्यू में बोला था कि माय ड्रीम इज टू वर्क विद भंसाली सर. अरे बाप रे. एंड देन व्हेन आई गॉट अ कॉल ना, मैं घर में भागने दौड़ने लग गई. लाइक ऐसा होने लग गया, भागने लग गई, पापा को बता रही हूँ. एंड देन आई एम सो नर्वस टू मीट हिम, एंड ही मेट मी एंड ही सेड कि ही हैड सीन मेरा और मुक्ति का एक वीडियो जो हमने एक टेरेस में डांस किया है, शेप ऑफ यू. तो वो देख के उन्होंने बोला कितना क्रिएटिव है. आई एम लाइक हमने तो इतना टाइम पास करके बनाया है. But I felt very happy that he noticed it and he called me to work with him. It is like entering a class working with him. Every little thing he said and he observed around the set was like, I wanted to take it down. Wow. I never thought myself as, you know, a professional. मेरे में वो ईगो नहीं है कि मतलब मेरे को महान की तरह ट्रीट करो. I become a student, and for me to become a student of dance is how I want to live my life. Always. Because I want to keep learning. The minute you feel like you know, you stop that learning process. So for me, I was like, sir, you tell me what to do, I'll do. तो मेरे लिए तो बहुत ही fascinating experience of my life, and my first break with Bhansali sir, मतलब it was, I don't want anything else. was very good to watch also. So I would like to say that on behalf of everybody, that what a fantastic song you've given us, Shakti. Congratulations on that. I want to create a platform where everything there is dance based. Nice. चाहे वो ट्यूटोरियल्स हो, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग विद माय यूट्यूब चैनल. Nice. कि सब कुछ डांस बेस्ड है. चाहे अभी हमने कोरियोग्राफर्स कॉन्फ्रेंस किया हुआ है, वी होस्टेड व्हेन वी स्पोक अबाउट द रियल इश्यूज रिगार्डिंग डांस. आई ऑल्सो वांट टू, यू नो, कितनी बार ऐसा यश मेरे साथ हुआ है कि आई हैव गॉन फॉर एन इंटरव्यू एंड दे हैव कॉल्ड मी आप एक्ट्रेस है, एंड दैट आई हैव फेल्ट वेरी बैड. आई एम लाइक, आई एम नॉट एन एक्ट्रेस, व्हाई यू कॉलिंग मी एन एक्ट्रेस? दे फील लाइक आई विल फील बैड इफ दे कॉल मी अ डांसर. And this thought I want to change. Please do. कि आप why don't you find it enough that I am a dancer and I'll always be. उनको ऐसा लगता है कि अभिनेत्री लिख देंगे तो उनको ज़्यादा I don't understand why, but कहीं ना कहीं ऐसा है कि डांस को लोग इनफ नहीं समझते, या समझते हैं कि अगर एक्टर बन जाएंगे तो यू आर बिगर. एंड आई थिंक दैट आई रादर चेंज द इंटायर मोल्ड देन गोइंग एंड फिटिंग इनटू अनदर मोल्ड टू बी एक्सेप्टेड. डू दैट. बना दे एक डांस का डिकैथलॉन. एवरीथिंग डांस वहां पे मिलता है, जैसे स्पोर्ट्स का सब कुछ वहां मिलता है ना. बट आई नो अभी तूने एक्टिंग वाला पॉइंट टच किया, तो आई हैड टू गेट टू दैट आफ्टर डांस इंडिया डांस you got those offers, you did those projects. Please tell me about that experience. दिल दोस्ती डांस, बाप रे, वो क्रिया का तेरा कैरेक्टर, मतलब तेरे कमेंट्स में आके लोग क्रिया लिखते रहते हैं, अभी भी उनका बंद नहीं हुआ है. So how was the acting experience? You met two of your close friends there. हाँ, my best friends.
are from the show. I think that was the best part of the show. For me, I didn't enjoy acting at all. I didn't enjoy it. I don't know if it was the environment or it was just me not fitting into, ऐसा मतलब for me what was attractive was they're making something which is step up based. That was the brief. And I'm like, oh my god, I'm going to dance, I'm going to dance, I'm going to dance. And जितना भी acting का part था ना, I really found I struggled because it's very difficult for me to surrender. And I'm like so real, like I will be, for me to pretend and act, it's Mukti's job. So I used to be मैं like, अब भी बोलने वाला था कि उन्होंने गलत बहन को बुला लिया था, मुक्ति को बुलाते मुक्ति I पुती. swear. Oh my god, I love it. मेरे को कितनी बार कॉल आता है ना कि कोई भी वेब सीरीज या कोई भी मूवीज, मैं बोलती हूँ मुझे क्यों बुला रहे हो, आई एम नॉट एन एक्टर, कॉल मुक्ति, मेरे को नहीं करना है. क्योंकि आई डोंट सी, यू नीड टू रियली लव इट. आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग सो दैट ओह दिस आई विल गेट विजिबिलिटी एंड आई विल गेट दिस. मेरे को ऐसा कोई भी काम ना ऐसे ऐसे के लिए नहीं करना है. आई लाइक हाउ दिल दोस्ती डांस उन्होंने तेरे को स्टेप अप बोल के बेचा था. अगर वो स्टेप अप के थोड़ा भी नजदीक होता तो तू खुश होती उसमें. अगर वो सच्ची में स्टेप अप के नजदीक होता तो. See, they also tried. It was the first time and it did very well. Like the Yeah, yeah. ratings were crazy. And even now, मतलब मैं एक बार मुझे याद है, I had gone to Maldives for a show. And I was like, wow, Maldives for the first time. People were screaming Kriya, Kriya in the audience. And this is like, pura audience scream. So I was like, what is going on? Like, you watch the show? Yeah, we only watch it. 7 p.m. we get home and we watch the show. So then I realized that there is something. बट यही बदलना है तुझे शक्ति. एक्ट्रेसेस का ही सिर्फ नाम नहीं होना चाहिए, कोरियोग्राफर्स एंड डांसर्स का नाम होना चाहिए. वही करना है, वही करना है. Perfect. और उसके लिए ना रिकग्निशन देना है. जो भी कोरियोग्राफर्स, कैन यू बिलीव इट, मास्टर जी गणेश आचार्य जी 40 साल से इंडस्ट्री में है और आज भी उनको क्रेडिट नहीं है. रेमो सर को क्रेडिट नहीं है, 25 साल से इंडस्ट्री में. बॉस्को सर को क्रेडिट नहीं. इट्स बैफलिंग. इट्स बैफलिंग. इट इज. कि अगर ये हो रहा है तो फिर हम लोगों के साथ क्या होगा. नहीं, एब्सोल्युटली. शक्ति, तुझे कोरियोग्राफ करने मिल रहा है या फिर एक म्यूजिक वीडियो में डांस करने मिल रहा है, तो शक्ति क्या चूज करेगी? परफॉर्म. ऑलवेज. Yeah. यू ऑलवेज लव टू डांस. या एनी डे, एनी डे. ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. या नहीं, इट्स नॉट अबाउट, आई एंजॉय डूइंग दैट. चाहे वो स्टेज हो, मतलब टू नॉट टेक द हेडेक ऑफ क्रिएटिंग. जैसे डांस प्लस में ना, यू नीड टू डिजाइन पैकेज, दैट्स नॉट माई थिंग. यू लीव मी ऑन स्टेज एंड आई विल किल इट. तो We वही saw that in your performance in the finale. आई रियली लव इट. मैंने तो बोला पुनीत प्लीज कोरियोग्राफ, आई एम गोइंग एंड देयर लाइक या, आई एम लाइक प्लीज यू कोरियोग्राफ, नो हेडेक. आई डोंट लाइक हेडेक. So I think you're just being honest. फील लाइक हमने अपने आप को पता नहीं क्या महान बना के रखा है अपनी दुनिया में. किसी भी, चाहे पर्सनल हो, जैसे भी हो, जो भी आप लाइफ में करते हैं, सबने अपने अपना कुछ बना लिया. वहाँ जाके पता चलता है कि दैट यू आर नॉट इवन लाइक दिस. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, टू गो टू ज़ीरो, लाइक फुली शट ऑफ एंड फॉरगेट हु यू आर. तो उसके लिए मैं आई कीप चेसिंग दोज एक्सपीरियंसेस. कहीं पे भी जाके बस लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई गेट आउट ऑफ द सिटी, लोनावला या कहीं भी जाके, कहीं पे भी रास्ते में पेड़ दिखे ना, रुको रुको रुको, एंड आई विल गो सिट ऑन द ट्री. शक्ति, ये YouTube पे फ्लैग हो जाएगा क्योंकि तू पेड प्रमोशन कर रही है ना. आई एम सीरियस. एक बार एक आदमी कह रहा है, मतलब वो ऐसे नहीं होता, लैंड दिखाते हैं खरीदने के लिए. करेक्ट. तो मैंने कहा भैया रुको ना, एंड ही इज अ ब्रोकर. हाँ. देखा रुको ना, मैं चढ़ गई पेड़ पे. तो कह रहा है अरे पहली बार ऐसा हुआ है, कोई बॉम्बे से आया है और पेड़ पे चढ़ गया. उसने बोला है मैम इधर भी एक 2 BHK है, ऊपर वाले ब्रांच से राइट लेना. आई डोंट नो, आई हैव दिस फैसिनेशन. मे बी होगा कुछ तेरा कनेक्शन. लाइक शुरू में जैसे मेरी लाइफ मैंने इतनी अग्रेसिवली जी है ना, फर्स्ट आना फर्स्ट, आई थिंक आई एम ट्राइंग टू अनडू दैट एंड आई एम ट्राइंग टू रिलैक्स एंड एंजॉय माई सेल्फ. एंड आई एम नॉट डूइंग दिस कि मुझे करना है मेडिटेशन. You don't want to do life is a race. You just want to enjoy you. यस यस. And you पे आते हैं, मतलब तेरे इतने सारे फैंस है. आई एम श्योर तेरे बहुत सारे एडमायरर्स भी है, क्योंकि देख, भक्त तो किसी को नहीं चाहिए. सबको चाहिए कि एक रिस्पेक्टफुल, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लविंग, केयरिंग कंपेनियन हो. शक्ति मोहन, क्या पहली बात तो शक्ति मोहन सिंगल है? डोंट यू नो? ये मेरे लिए नहीं है, ये पूरे फ्रेटर्निटी के लिए मेरी पूछ रहा हूं. शक्ल देख के बताइए आपको क्या लगता है. खुश लग रही है तो सिंगल ही होगी. मेरे जैसे को मत पूछ, मैं तो यही बोलता हूँ. बट शक्ति, सी you've done anything and everything you can do in your profession, and I know you're that kind of your aura and personality is such ना, तू एक बोल्डर है, तू रुकेगी नहीं. So it is going to continue.
that will keep happening. But you are in a secured place professionally and achieved, financially stable. What is stopping you from finding a partner, or there is nobody? But then why do you have to find a partner? Correct. So I just want to know your perspective about it. Yeah, I mean, I feel like there is a certain template created for every human. Correct. The minute one is born, कि पहले school करो, ये करो, वो करो. I feel that mold should be broken. True. I mean, we all know कि सब बोलते हैं पढ़ाई करो, graduate बनो. Look at Sachin Tendulkar. Correct. Look at the most successful people in the world. They are doing what they love. And ये भी एक बन गया, शादी कर लो, फिर बच्चे कर लो, फिर ये कर लो. मतलब ये ऐसा क्यों है? You can choose to even be with yourself and continue to live your life happily. Correct. Being happy is important, not being married is important. पता नहीं वो ऐसे क्यों बना दिया Absolutely. कि शादी कर लो तो खुशी मिलेगी. कहाँ कौन मुझे बता दो खुश है? नहीं और मतलब there are people who are happy. I हाँ, see my तेरी बहनें देख रही sisters. है. My sisters हाँ. are extremely happy because they have found the right person and maybe they wanted that. I am so much in bliss with myself because I grew up in a big family, and to be finally able to live by myself, explore and do every day what I want to do, travel, go anywhere without anyone asking, saying, is beautiful for me. और तेरा रूटीन किसी और के रूटीन से एंटेंगल्ड नहीं है. Yes. सो आई थिंक सी आई वॉज नॉट आस्किंग कि क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि मैं तो सबसे बड़ा एडवोकेट हूँ दैट जब तक सही जन ना मिले कंपल्शन कुछ नहीं है. एंड आई ऑल्सो गेट वेरी एंग्री व्हेन पीपल ट्राई टू टेल यू टू गेट मैरिड फॉर द रॉन्ग रीजंस. तो मेरे को किसी ने तो क्या बोला, somebody dropped this casual sentence saying that you know it will complete. मैंने बोला मेरे को कंप्लीट करने के लिए मेरे को दूसरे जन की जरूरत नहीं है. आई कंप्लीट माई सेल्फ. You know, I need to be happy. And Yash Thakur completes the universe. like if you want a person, want him or her for the right reasons, where you like the companionship. You want a friend who understands you better than other friends. Yeah. Then it's a different story. So I think if somebody like that comes organically, you're okay. But you're not going to run. I don't know. I love my space and my life so much. I don't know. I have not. I don't know is a good answer. Yeah. But it's not a no. Like मुझे कभी शादी नहीं करनी नहीं है ना. Nothing in life I told you is Never. yes or no. It's all like explore, surrender, keep going with life. And मुक्ति की जब शादी हुई थी, your younger brother got married, no? My younger brother got married. उसके शादी को 5 साल हो गए और वो मेरे से 3.5 साल छोटा है. So उसके शादी में मैं जब कॉम्पेयर था, मैंने तो बहुत मजे लिए. मैंने बहुत ऐसा खुल के बोला कि यू नो व्हाट, सिंगल रहने के अलग मजे होते हैं. मम्मी वहाँ से डांट रही है पहले रो से कि कितना जोक मारेगा इस पे. और मैंने बोला, लोग बोल रहे थे कि अरे उसको रुको, बड़े भाई की पहले होने दो. तो मैंने तो मुंह पे बोला माइक पे कि मेरे पीछे रुकता तो उसकी होती ही नहीं. मुक्ति की शादी अभी हुई है ना 4-5 महीने पहले. एटलीस्ट 162 पीपल हैव कम एंड टोल्ड मी तेरी भी हो जाएगी. लाइक दिस, होल्डिंग माय चिन. यार And I want to punch everyone. अरे in the जैसे face. तेरे ऊपर कोई बुरा प्रकोप चल रहा है, ऐसा मतलब वरदान दे रहा है. कि बेचारी. I'm like, what is wrong with people? That really frustrated me. कि I can also choose to have another path in life. Correct. Everyone's not going to be इसने भी करी अब हम भी करेंगे. ऐसा क्यों बात मैं थोड़ा क्रूडली बोलता हूँ ना, लेकिन मम्मी ने मुझे बोला एक दिन कि मालूम नहीं मैंने ऐसा क्या किया है, एक की हो गई, उसको बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है, दूसरे की शादी नहीं हो रही है. तो मैंने बोला 2 बच्चे हैं ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दो. शादी उसने कर ली, बच्चे मैं कर लेता हूँ. मतलब शादी और बच्चों का कोई कनेक्शन नहीं है भाई. देख मम्मी मुझे कह रही है कि देख तेरी वो फ्रेंड के 4 बच्चे हो गए. मैंने कहा मम्मी बच्चे ना कोई भी पैदा कर सकता है, इसमें कोई अचीवमेंट नहीं है. रोड पे 2 लोग घूम के ना 4-5 बच्चे पैदा कर सकते हैं. उसके 4 बच्चे हो गए, तेरे देख. कंपटीशन है, जैसे कि मतलब उसने कर लिया तुम भी करो, भागो, सबके पीछे भागते रहो बस पूरी जिंदगी. बट I like how you think about it. And मेरे को अच्छा लगा. मैंने इसलिए एक भी बार ये नहीं बोला कि शादी क्यों नहीं करी, रिलेशनशिप में क्यों नहीं. तेरा पर्सपेक्टिव क्या है मैं जानना चाहता था. एंड विच इज़ वेरी कूल. एंड कूल तो एक और चीज़ है शक्ति, कि आज तू यहाँ पे आई और मुझे इतना मज़ा आया तेरे साथ. यू नो इट वॉज सो गुड कैचिंग अप विद यू. कैमरा है, माइक है, मुझे कुछ अता पता ही नहीं है. इट्स लाइक इट वॉज अ लॉन्ग कैचअप डेट जो हमारा बचा हुआ था. नहीं, अभी और बचा है. आई डोंट थिंक इट्स ओवर. आई नीड टू नो सो मच मोर अबाउट मी इन योर लाइफ. हाँ, उसके लिए तू मुझे तेरे स्टूडियो बुला. नहीं, absolutely, and I'm so proud of you, Yash. Seriously, you are an example to so many people out there to follow your dreams.
and you have done that. And every day I see your stories, you do your stuff and you post. I genuinely see that big smile and that fulfillment and happiness. उससे ज़्यादा कुछ important नहीं है life. नहीं, that's why that sentence when you said ना कि मुझे नहीं पता था कि 5-6 हज़ार कितना कमाऊंगी, बट ये तो डिसाइड कर लिया था कि डांस में मेरे को थोड़ा ऐसा आना पड़ा क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से आया. बट जिस दिन मैंने पहला स्टेप रखा ना मीडिया के फील्ड में, मैंने बोल दिया इधर से मैं तो कहीं नहीं जा रहा. एंड रिसेंटली आई स्टार्टेड होस्टिंग इवेंट्स. मैं वो I जो know, स्टेज I पे see. जाता हूँ और माइक मेरे हाथ में है और मुझे है ना कुछ रोज तक दिख भी रहा है और मतलब जोक मारूं तो हंसेंगे, थोड़ा ड्रामा कर दूं तो ऐसे हो जाएंगे. वो जो इतने लोगों का एक्सप्रेशन और इमोशन मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, उसका जो हाई है ना, इट्स नॉट कंपेयर टू एनीथिंग इन But लाइफ. 1 second, Yash Thakur, you never needed stage or mic. you have performed just for solo audience also. करता हूँ मैं. You're going places, Yash Thakur. तेरे पास विजन है, अगर तू बोल रही है तो हो ही जाएगा. वापस मिलेंगे. Nini, I know one thing, that if you have the right intent, nobody can stop you. थैंक यू सो And you मच. have it all. शक्ति, दिस हैज बीन सच अ हार्ट वार्मिंग. माई हार्ट इज फुल. मुझे इतना मजा आया. बट जैसा हमारी प्रथा है, हमारे शो पे जो आता है हम उनको हमारे स्टाइल से एक पर्सनलाइज्ड मेमोरी / गिफ्ट देते हैं. तो ये तेरे लिए है. ये कहाँ से आ गया एकदम इट्स से? Oh my मैजिकल. God. तो हम Shall I चाहेंगे कि open तू it? इसको यहाँ पे ही ओपन Okay. कर. I love the wrapping paper. It's very cute. इट्स कॉल्ड तस्वीर की टोपी. How can you be like this? दिस इज शक्ति मोहन की तस्वीर की टोपी. ये हम आपको देते हैं. Thank you. Thank you. Lovely. So, guys, this was Shakti Mohan in a candid chat with us on TikTok with Thakur. So, please watch the episode, like, share, and subscribe, and write into our comment section. जो भी तुम लोगों को लगा शक्ति से कुछ पूछना है, हम पूछ के बता देंगे. लेकिन keep watching and see you guys next time. And everyone like, share, and subscribe. And also follow him on Instagram. He's an amazing, amazing person, and I love him from the bottom of my heart. And I only wish the best and the most amazing things for you, Yash. Love you. शक्ति यार. You're a sweetheart. बंद करो यार रोना. बंद करो.